Shanti, Shanti, Shanti. I'd like to say a few words in English first, and then I'll talk in Hindi, because most of them would like to have the deliberation in Hindi. It's wonderful that we have come together to discuss a serious issue. So it's a sort of happy and unhappy moment together, because we are discussing something so serious that is concerning the whole country, whole world as such. At the same time, we are so happy that there is such an overwhelming response from all the leaders. The willingness from all the religious and spiritual leaders and the wide spectrum of people who have come here. I'm very deeply touched, because India is a big country and very diverse sects of Hindu religions are there, and they are all represented here, right from Vaishnav Devi temple and Badrinath, Kedarnath, and in the north to Kamakhya in the east, and to Gujarat, and then south, of course, here in Tamil Nadu, Kerala. So the entire country is represented. Of course, there are more than 1,000 swamis and head of institutions in this country, but we are 70 people who are just representative from the regions. I'm sure they will go back and meet with the rest of the people there, religious, spiritual leaders, who represent nearly 1 billion population of the world. You know, there is 1.2 billion Hindus in the world. Like in Bali, the Hindus, their tradition, customs, and the Hindus of Jamaica or Hindus of India, they all have one common thing, that is to pray for peace and to call for unity among minds and hearts. All of us join together, go for one cause, that the whole world is one human family. You know, an all-inclusive attitude. And I'm glad that all the Swamis took time off and came here, where millions of people go each day to all these mutts and then the shrines. If all of us can take on this project to educate the youths, to educate the youngsters about healthy living, positive thinking, and a stigma-free, inhibition-free attitude towards people, we would have taken a big step. And I'm thankful to the United Nations and INA and other bodies who have encouraged this work. I mean that they are like the thread that is binding all the roses, all the fragrant flowers together in one beautiful garland. मुझे बहुत खुशी हो रही है, आप सब संतों का आशीर्वाद यहाँ एक साथ मिल गया. आप सब यहाँ आए, आप सबको मैं धन्यवाद प्रणाम कहते हुए मैं ये एक बात कहना चाहूँगा. हम लोग तो कहते हैं, बाली में जो हिंदू हैं वो सबको ग्रीट करते हैं स्वस्ति रस्तु, ओम स्वस्ति रस्तु, may health be on you. The ancient Hindus in the Bali, they greet each other saying Om Swasti Rastu, may health be on you. हमारे यहाँ कहते हैं हरिओम कहते हैं, या कुछ भी हम कहेंगे, प्रणाम कहते हैं. स्वास्थ्य के बारे में ही हमने बात किया, बीमारियों के बारे में नहीं. हमने सोचा रे भाई ये क्या आपत्त आ गई, सब संत सब इकट्ठे होते हैं तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम की बात है. काव्य शास्त्र विनोद और ब्रह्म विचार करने वाले सारे संतों को बुला करके हम अब क्या बीमारियों के बारे में बात करनी पड़ेगी. ये हमको थोड़ा अजीब सा भी लगने लगा कि मगर परिस्थिति ऐसा हो गया है कि आज कहाँ से एक आर्य परंपरा से हम जहाँ ब्रह्म चिंतन और एक आत्मचिंतन और विश्व कुटुंब का एक दृष्टिकोण रखते हुए पवित्रता का एक लहर उठाते हुए चलने वाले, आज हमें बीमारियों के बारे में सोचना पड़ रहा. हमारे आयुर्वेद में भी सबसे पहले है कि स्वस्थ व्रत, स्वस्थ कैसे रहना. हम स्वस्थ रहना सीख लेते हैं तो बीमारी होगी कि नहीं, दूर हो जाएगी बीमारी. और स्वस्थ सिर्फ शरीर का नहीं, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा की चेतना, बोध, प्रेम और ज्ञान की जो बात करनी है, वहां पर आज हमारी परिस्थिति ऐसी हुई है
कि हमें बीमारियों के बारे में भी बात करनी पड़ रही है। तो इसलिए मैं जानता हूं ये अपना संतों का विषय नहीं है, समझते हैं, पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो परंपरा के महासंत थे, ऋषि मुनि थे, इन लोगों ने भी सारी बीमारियों की निदान निकाला है। आयुर्वेद का जन्म ही ऐसा हुआ जब 80,000 संत बैठे ध्यान में, फिर एक भरद्वाज को बोले, भरद्वाज आप जागृत रखो, हम सब ध्यानस्थ हो जाएंगे, समाधि में चले जाएंगे। एक भरद्वाज जागृत रह करके बाकी सारे संतों के भीतर से जो ज्ञान उतरी, वाणी उतरी, 80,000 संतों का, यदि मैं उसका संख्या आगे पीछे कह रहा हूं तो माफ करना, मुझे इतना स्मरण है, 80,000 संत ऋषि मुनि थे। एक महर्षि भरद्वाज ने उन सब की जो भीतर से निकली उन सब बातों को लिख डाला। तो सबसे स्वस्थ वृत्त, जब स्वस्थ वृत्त समाज में लागू नहीं कर पाए, फिर एक के बाद एक बीमारियों का निदान बताते चले गए। आयुर्वेद का स्वास्थ्य वृत्त से लेकर के फिर सब तरह की बीमारियों का निदान तक हम लोग पहुंचे हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये कोई नया नहीं है, पुराने जमाने में भी संत मुनि, ऋषि मुनि सब एकत्रित होकर के समाज के स्वास्थ्य पर विचार करते रहे। जैसे गोविंद पादाचार्य ने, गौड़ पादाचार्य ने भी कहा कि रसे सिद्धे करिष्यामि निर्धारिद्र मिदम जगत। तो रस हृदय तंत्र जब उन्होंने, गोविंद पादाचार्य ने लिखा कि स्वास्थ्य के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, तो वहां पर भी उन्होंने कहा कि रसे सिद्धे करिष्यामि निर्धारिद्र मिदम जगत, ताकि स्वास्थ्य ही सबसे पहला धन है, स्वास्थ्य नहीं है तो दरिद्रता है। तो ऐसी एक स्वास्थ्य संरक्षण के लिए कहाँ केदारनाथ से लेकर कन्याकुमारी तक, और इधर हमारे कामाख्या से लेकर गुजरात तक, आप सब जगह से लोग आए हैं। साउथ अफ्रीका से भी आए हैं, उनको भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। उतना दूर साउथ अफ्रीका से आए, वहां बहुत इस बीमारी से पीड़ित हैं लोग। और 35 लाख, आपने कहा, सुजाता राव जी ने कहा कि 35 लाख लोग हमारे देश में इस बीमारी से पीड़ित हैं, वो भी बहुत ज्यादा है। मुझे तो लगता हमारी जो संख्या के हिसाब से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, फिर भी इतना भी नहीं होने देना चाहिए। और लोगों में जागृति लाने में आप सबका सहयोग चाहिए, जरूरी है। तो हमें एक ऐसा कार्यक्रम बनाए, बार बार हम लोग मिले। जब इस कार्यक्रम का घोषणा हुआ था, मुझे सुनाई दिया कि हजारों लोग इसमें, संत समाज इसमें शामिल होने के लिए आतुर थे, पर स्थान के अभाव से और समय के अभाव की वजह से थोड़े से ही लोगों को हम सत्कार कर पाए, निमंत्रण कर पाए यहाँ पर। मगर आप अपनी अपनी स्थान के, अपनी अपनी जगह के दिग्गज हैं, तो मुझे पूरा यकीन है आप सब लोग मिलकर के युवकों में, खासतौर से लड़कों में, लड़कियों में, ये जो नशे है, तरह तरह की नशेबाजी और भ्रष्टाचार, दुराचार, इन सभी बुराइयों से हमारी जो आने वाली पीढ़ी के बच्चों को बचाना है, उसके लिए हमें सबको मिलकर काम करना है। तो इतना ही मैं कहूंगा। अभी हम चर्चा, विचार विमर्श करेंगे। आप अपना जो भी अपना मत रखिएगा, हम सब फिर आखिरी में सब मिलकर के एक नतीजा निकालेंगे, फिर उसको कैसे हम जनता तक, जनता जनार्दन की सेवा में कैसे इस काम को लगा सकते हैं, इस सिद्धांत को लगा सकते हैं, ये हम लोग सोचेंगे। After this we will have discussions, each one of us can come up with our own ideas, and we'll make a pool of ideas and then take it to the masses, where thousands of people will be benefited by educating them on this serious problem that the world is facing today. Thank you very much. बहुत धन्यवाद, और प्रणाम।